number one, I think a lot of people talk about this Gen Z ki polarity in this aspect ke at some points they are just so sensitive about everything, and then they end up turning completely insensitive. One of the examples being this, the war that happened a bit recently, and the memes and the Gen Z memes, and like things were just going crazy. हाँ अच्छा, मैं एग्जैक्टली आई वाज आल्सो गोइंग टू कम बैक टू दिस पॉइंट कि जिस तरह हमने ओसीडी की बात की, मुझे लगता है इससे कोई ट्रेंड भी है जैसे 3-4 साल पहले ओसीडी वाज द वर्ड कि जी मुझे हर दूसरा बंदा मुझे ओसीडी है, ये मत करो मुझे ओसीडी है, ये मैं साफ सुथरी रहती हूँ क्योंकि मुझे ओसीडी है, ठीक है। अब वो एडीएचडी को भी बहुत इस तरह से कर रहे हैं, बट आई थिंक इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली एडीएचडी इज़, और many a times it's not ADHD, many a times you just need to organize. To be honest, I started feeling some emotions, like even जो खुशी वाले भी होते हैं, like जो joy वाले भी होते हैं, and sometimes के कोई joyous moment होता था और मैं उसको feel करती थी, and I would just start crying because मुझे लगता I would realize कि अच्छा लोगों को actual में ऐसा feel होता है हर वक्त। Instagram खास तौर पे उससे it paints such a beautiful picture of everything, you just feel like your life is shit. That inculcate, especially if you are कह लें मेरी तरह से, मैं तो I'll be very open, insecure सा person, somebody who is not really very sure about themselves or very confident. Hello guys, hello everyone, assalamu alaikum to everyone. Welcome to another episode of Two Peas and a Pod. Habiba just off the camera reminded me the exact name of our podcast because I seem to just mix it up all the time. So welcome to another episode of Two Peas and a Pod. और हम लोग बड़े टाइम के बाद हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैड लाइक बैकलॉग, तो वो हम पोस्ट करते जा रहे हैं, बट हमें रिकॉर्डिंग करने का टाइम थोड़ा सा बीच में से नहीं मिल रहा था, और ऑल्सो आई नो कि ये थोड़ा अरसे बाद एयर होगा, बट दिस इज राइट आफ्टर द वीक ऑफ द वॉर, द मोस्ट हैपनिंग वीकेंड ऑफ ऑल टाइम्स फॉर पाकिस्तानीज एंड इंडियंस। तो ये उसके बाद हम लोग कर रहे हैं, तो इतना डिले का रीजन भी यही है कि वी वर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। तो राइट स्टेट ऑफ माइंड से हमारा बहुत ज़्यादा लिंक है आज के टॉपिक का। हमने सोचा कि हम आज डिस्कस करते हैं ओवरऑल मेंटल हेल्थ, इसके चैलेंजेस और क्या इम्पैक्ट है उसका, हमें क्या पैटर्न्स नज़र आते हैं, हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और इसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली काफ़ी चीज़ें वैसे तो हम चाहेंगे कि हम कवर करें, लेकिन ADHD is one thing जो कि it's a very common topic these days. A lot of people are misdiagnosed, a lot of people are self-diagnosed as well. Some of them who are rightly diagnosed, उनको सही थे, फिर मसला ये है कि उनको भी nobody takes them seriously, so that's also like a stigma. तो उस बारे में हम जो है वो ज़रा बात करेंगे। थोड़ा सा इंट्रो में ये बता दूं कि ये टॉपिक हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे अपनी कन्वर्सेशंस में, और उसमें बड़ी इंसाइट्स हम लोग डिस्कस किया करते थे। उसका रीज़न एक ये है कि वंस हबीबा पैशनेटली वांटेड टू बिकम अ काउंसलर एंड शी स्टार्टेड स्टडीइंग इट एज वेल, लेकिन मिडवे वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया बताएं? हाँ, so basically I really wanted to become a psychotherapist. उसके लिए I started like a course in an institution which was associated with the UK counseling board, कह लें उसको जो भी, so वहाँ पे वो associated था and I was really enjoying it. So there were 2 courses, पहला होता है 1.5 साल का, that was done. For the other one I was like almost halfway through it, but then a very unfortunate incident happened. I think वो लोगों को पता है उन मुकदम वाला जो हुआ था केस, तो उसके बाद because the institute that I was studying at and also like the founder, they also got really busy, wrapped up in it, busy as well, and that not, so there was nothing that मतलब I'm not accusing them of anything, but for me मेरी अपनी mental state, it just became so difficult to sit in classes. वो एक होता है ना looming एक चीज़ चल रही होती है, the environment never stayed the same there. I by the way tried after a year I tried again, and I went to the same institute, but
I could not. The teachers were not the same. A lot of teachers had left. So that's why फिर मैं कभी भी उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी. फिर जॉब का भी वो चलता रहा. However, this is still a dream which I am like very adamant के भले 40 साल की उम्र में I will be pursuing. But yes, yeah. So that was the story. So इसलिए हमारी टॉपिक में कहीं, हमारी कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं ये टॉपिक लड़किन कर ही जाता था हमेशा से. सो वी थॉट व्हाई नॉट डिस्कस इट ऑन द पॉडकास्ट. और पॉडकास्ट की अच्छी बात ये है कि आप लोगों का भी इंसाइट जो है वो हमें मिल जाते हैं. आई थिंक देसी हाउस होल्ड में और देसी सिनेरियोज में मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस अभी थोड़ी सी अवेयरनेस आना शुरू हुई है. लेकिन इंटायरली ऑफ कोर्स जो कि आई थिंक सबको ही पता है कि हम लोग मेंटल हेल्थ को अभी भी उतना सीरियसली नहीं लेते जितना ये सीरियस प्रॉब्लम बनता जा रहा है. जो हमारी पहली एपिसोड थी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमने मेंटल हेल्थ में कवर की थी कि पेरेंटिंग मैनी टाइम्स जो है वो पेरेंटिंग जो है इफेक्ट कर रही होती है. अच्छा हबीबा, जस्ट ऑन टॉप ऑफ माई माइंड एक क्वेश्चन आया है. एक मैं रील ही देख रही थी, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है. सो उसमें ये था कि बेसिकली जो हमारे फ्रॉइड हैं उनका एक स्टैंड पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ काउंसलिंग या थेरेपी. और वो ये कहते हैं कि सो उनकी जो भी थ्योरीज हैं, इट सीम्स एज इफ एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द चाइल्डहुड. और आपकी चाइल्डहुड में जो भी हुआ है इट इम्पैक्ट्स योर एडल्टहुड और आपकी जो पर्सनैलिटी होती है एज कम्पेयर टू दिस अदर guy like what is his name, I don't know. I think I also forget, but I think this is more about psychotherapy है. और वो जो cognitive वाला style है, which is more based on behavioral therapy जिसको कहते हैं कि you actually change your behaviors and then your thoughts also start changing with it. Yes, तो वो रील मैंने भी देखी थी. So I think one of the things that I would like to discuss के there's a lot of bashing of Freud and then saying कि जी सारा कुछ childhood पे अगर आप डाल देंगे तो वो विक्टिमाइजेशन वाला एक माइंडसेट उभर के आता है कि अच्छा मेरे साथ तो अभी हो चुका है, मेरे अम्मा ने मारा था बचपन में, या अब्बा ने मारा था, तो अब मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो मैं क्या करूँ. I think there needs to be a balance. Of course, Freud also went to certain extremes and in diagnosing and putting people in boxes. I will not deny कि उसकी कुछ बहुत अजीब theories हैं, but I think credit where credit is due. Freud was the first person who actually even came up with the idea कि unconscious, subconscious कोई चीज़ होती है, right? कि आप जो बोल रहे होते हैं या जो कर रहे होते हैं, या कभी आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा होता है, या कोई बात कोई बंदा बोलता है लेकिन आपको रोना आ जाता है, ये सारा कुछ एक्चुअल में एक अंडरलाइन थॉट प्रोसेस होता है. इमेजिन हम लोग अब इसको कितना, मतलब फॉर अस दिस इज लाइक सेकेंड नेचर, दिस जस्ट साउंड्स सो ऑब्वियस, बट इमेजिन के बिफोर फ्रॉइड दिस वाज नॉट, मतलब दिस वाज नॉट कंसिडर्ड एनीथिंग, मतलब कोई ऑब्वियस चीज़ नहीं थी. जो बिहेवियर होता था डायरेक्टली उसको उसके साथ करते थे, या फिर वो लोग, देयर आर केसेस जहाँ पे वो कहते थे बस हिस्टेरिया या जिन चढ़ गया, या वो पहले ज़माने में भी होता था बाय द वे. और सो दैट्स वाई चाइल्डहुड मेरे हिसाब, मतलब एटलीस्ट दैट्स माई ओपिनियन एंड बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव लर्न्ड, चाइल्डहुड डज प्ले अ वेरी बिग रोल इन टू हाउ यू एक्ट. आपकी मेंटल हेल्थ कैसे शेप होती है, किस तरह आप चीज़ों से ट्रिगर होते हैं. लेकिन दैट डज नॉट मीन के मतलब अगर आपके साथ चाइल्डहुड में कुछ बुरा हो चुका है तो यू विल ऑलवेज स्टे, या आपके बिहेवियर्स हमेशा सेम रहेंगे. So you have control, you have power, but I think the first key step is to actually understanding it and then trying to change it. Yeah, it makes a lot of sense. लेकिन how do you take mental health, आपके इर्द गिर्द भी I'm sure काफ़ी examples होंगी. Do you think कि अभी we are like on the way of getting more aware about it? या आपको लगता है कि अभी भी at least in the scenario of पाकिस्तान या हमारे इर्द गिर्द अभी भी आपको लगता है कि अभी भी उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता? I would say there is definitely like हमारी generation में it is much better, और exposure जितना ज़्यादा आपका, so the more you are towards the urban side of things, at least आपको पता होगा anxiety कोई चीज़ होती है, depression कोई चीज़ होता है, right? People might have different opinions on कि उनको किस तरह से handle करना है, but I still feel, and this is not just us, even the West, we in terms of really understanding and really giving mental health
वो जो एक होता है ना कि क्रेडिट तो उसको देंगे, इट्स लाइक बीमारी है, राइट? इट्स नॉट समथिंग जो कि समथिंग दैट किसी को मजा आता है अपने साथ करके, राइट? तो वो अभी दूर दूर तक नहीं है. There is a lot of stigma even in so even, और मैं मजा की बात बताती हूँ, वो होता क्या है कि क्योंकि देयर इज लाइक अवेयरनेस के यही पॉडकास्ट और चीज़ें और सारा कुछ सुन सुन के एवरीबडी हैज़ दिस आइडिया कि ओहो मुझे मेंटल हेल्थ के लिए लोगों को स्पेस बनानी है. सो दे आर लाइक उन्होंने ना वो स्क्रिप्ट रट लिया है एंड दे आर लाइक येस वी हैव टू ऑफर सपोर्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट there are, I would say, so many people who still don't believe in it, and that's why I say that we are still way far behind in terms of understanding mental health. वो actual में है क्या? I think मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये भी मसला है, again जिसे आपने point out किया कि generation to generation में थोड़ा सा फर्क नजर आता है, और आपको patterns भी नजर आते हैं. I think I हैव टू मेंशन कि एक पैटर्न जो मैं और हिबा अक्सर ही डिस्कस करते थे, जो कि बड़ा कॉमन है, वो ये है कि अब की जो जनरेशन है जो लेट 20s या अर्ली 30s या इवन 20s में है, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे फील सो ओवरवेल्म्ड, और वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल मतलब हेल्थ का शिकार हो, उनकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा बुरी इसलिए हो रही है बिकॉज एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, वो दे आर करियर में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है. एट द सेम टाइम एक एडेड उनके ऊपर ये चीज़ है कि दे हैव टू पेरेंट देयर पेरेंट्स, एंड दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन पैटर्न, स्पेशली मिलेनियल्स के अंदर होता ये. मुझे दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आई एम नॉट क्लेमिंग कि कोई रिसर्च है या कुछ है. हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है उसके अंदर जो शादी का कॉन्सेप्ट है, इट वाज वेरी डिफरेंट. इट वाज के शादी तो करनी ही करनी है, और मतलब आपने और उसको चलाना है बस, जो मर्जी हो जाए चलाना है बस, भले मिजरेबल है जो मर्जी है, या लाइक इट डज नॉट मैटर कि आप अपने बच्चों को किस तरह का माहौल दे रहे हैं, आपने फोर्सफुली शादी चलानी है. बेजोड़ रिश्ते भी बहुत ज्यादा किए जाते थे, कोई कंसिडरेशन नहीं है कि भाई एज डिफरेंसेस वाज लाइक वे बिग एज डिफरेंसेस, और उसको कोई वो नहीं था कि जनरेशनल गैप एक्चुअली कॉजेज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. एग्जैक्टली. तो वो होता ये था कि पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट जब उनको कंपेनियनशिप नहीं मिलती, और स्पेसिफिकली जब माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, बच्चे जवान होते जा रहे हैं, अब बच्चों का टाइम आ रहा है कि उन्होंने काम करना है, पैसा कमाना है, ये वो चीज़ें बनानी है, एसेट्स बनाने हैं. उस टाइम पे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन माँ बाप को आपस में कंपेनियनशिप का कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है. माँ बाप अपने आप एक दूसरे को जो है उससे सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरह पार्टनर्स को सपोर्ट करना चाहिए. तो वो क्या करते हैं, वो अपनी रिलायंस बना लेते हैं अपने बच्चों के ऊपर, एंड दे एक्सपेक्ट के वो जो इमोशनैलिटी है वो उनको अपने बच्चों से मिले. दैट इज causing a lot of distress in the millennials and the younger generation as well. तो ये एक पैटर्न जो है वो है, if you would like to add to it. So basically I also feel like कि वो होता है ना कि इमोशनल रेगुलेशन जो है ना, जब अगर आपने बचपन में इमोशनल रेगुलेशन नहीं सीखी या आपको किसी ने नहीं सिखाई, और या आपने मॉडल होते हुए भी नहीं देखी, राइट? तो आप जितना मर्जी बड़े हो जाएं, जितने मर्जी आप ऊपर पहुंच जाएं, जो मर्जी आप जिंदगी को चीज़ों से भर लें, वो इमोशनल रेगुलेशन जो है ना वो आपके अंदर बहुत मुश्किल से इनकलकेट होगी. आपको एक्टिवली पहले एडमिट करना पड़ेगा कि मैं इमोशनली रेगुलेट नहीं कर सकता या कर सकती, और फिर उसके ऊपर थेरेपी और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको होगा. तो इसका जो सबसे बड़ा आई थिंक जो बिगेस्ट इम्पैक्ट है वो यही है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली पिछली जनरेशन में अ लॉट ऑफ द पेरेंट्स were not emotionally regulated themselves as adults, or not a lot of them had this वो कह लें insight और wisdom into कि ये बच्चा है, इसको इन चीज़ों से expose नहीं करना. I have heard stories जहाँ पे पेरेंट्स की आपस में जिस तरह से आप नहीं बन रही, एक पेरेंट जो है ना उसने एक बच्चे को अपनी साइड पे कर लिया, वो दूसरे पेरेंट के खिलाफ उसको भड़का रहा है, ठीक है, भड़का नहीं भी रहा तो या तो उस बच्चे को ब्लेम कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से बर्डन भी कर रहे हैं, इमोशनल डंपिंग कि मेरा दिन खराब गुजरा है, तुम जिम्मेदार हो या मेरे से सुनो. लेटर इन स्टेज ये भी बहुत कॉमन है कि अगर यू हैव हैड अ डिफिकल्ट मैरिज और आपने उसको फोर्सफुली चलाया, व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीजन,
अब आपका बच्चा एडल्ट हो गया, उसकी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, एक तो आप उसके ऊपर इमोशनली डंप कर रहे हैं चीज़ें, और यू आर लाइक बिकमिंग अ बर्डन टू देम इमोशनली, ठीक है। और फिर उसके अगर थोड़ा सा रिटेलिएट करते हैं या वो अगर कुछ रिजेंटमेंट शो करते हैं, तो उसके ऊपर ये कहना कि भाई हमने तो बच्चों की वजह से अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। That's a lot of emotional baggage and burden. That is a lot. मतलब है उस बच्चे की अपनी इतनी मसले मसाइल हैं, उसकी अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो वाली चीज़ जो है, एंड ऑफ कोर्स अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो उनको ये लगता है कि ये बच्चा है, ये इंडिविजुअल जो हमने पैदा किया, इस पे हमारा हक है, तो यू नो अब दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस, जो कि बेसिकली आपको अपने पार्टनर से मिलनी चाहिए, बेसिकली ये है। इसके अंदर ना आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड कि just for the sake of some awareness, there are like a couple of things that might start happening if your parent is not emotionally regulated बचपन में, और किस किस्म की mental health issues आपको फिर along the way once you become an adult and you basically navigate similar relationships. So this is just basic theory, but like I think I would still like to go into it. So number one जो एक चीज़ है which is a concept of splitting, right? So what started so ये कोई split personality वाली वो कोई ड्रामाई चीज़ नहीं है. So होता क्या है, when a kid is born, for them basically everything is either good or bad, right? So if they are hungry, they need food is provided to them, the object that is providing that food is like a good object. Yeah. So it is until 2 years के जब तक जो 2 साल का बच्चा नहीं हो जाता, they don't really know. So for example, if you have a kid, तो 2 साल की उम्र तक it will not be like कि ये अच्छा ये रबीबा है, ये मेरी माँ है. They will only have this sensation कि जो मुझे उठाती है, तो वो sensation जो है that is the object, और because that object is providing comfort, that is a good object. और अगर वो किसी जगह पे बैठते हैं, उनको बुरी आवाज़ आती है, उससे वो डर जाते हैं, या वो रो रहे हैं और उसमें कोई और ऊपर से और कोई चीखें मचा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ मदर, आपने बच्चा उठाया हुआ, बच्चा रोई जा रहा है, उसको कंफर्ट चाहिए, आप उसको और चीख रहे हो कि क्यों रो रहा है, तो देन यू बिकम दिस बैड ऑब्जेक्ट। होता क्या है, सो इट्स नॉट लाइक कि आपने एक दफ़ा ऐसा कर दिया तो बच्चा तो बेचारा उसकी स्प्लिटिंग हो गई या उसको समझ नहीं आ रहा। सो आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है कि इफ़ यू प्रोवाइड द चाइल्ड अ सेफ इनफ इमोशनली रेगुलेटेड इनफ इन्वायरमेंट, जहाँ पे, क्योंकि चाइल्ड इज रियली सेल्फिश, इट जस्ट वांट्स कि मेरी नीड्स सारी पूरी हो, इट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि मेरी माँ है, उसकी अपनी एक जिंदगी है, सो द चाइल्ड कैन नॉट रियली एम्पथाइज even until the age of 7 years, right? Empathy बहुत मुश्किल से चाइल्ड में होती है कि अच्छा मेरी माँ है, वो जाएगी, वो वापस आएगी, वो थकी भी होगी शायद, इसलिए मुझे खाना नहीं प्रोवाइड किया है, whatever. So what start happening is कि अगर if you provide a safe enough environment and you also are emotionally regulated yourself and most of the time you are good enough for the child, so the child will start reconciling good and bad parts of yourself and their own as well. So then they will eventually they'll come a point कि वो उनको पता लग जाएगा कि मेरी माँ है, उसको कभी गुस्सा भी आता है बट वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, सो शी इज़ गुड एंड बैड, नॉट गुड और बैड. सो ये जो रिकंसाइलेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 7 to 8 years की एज तक जाके बच्चों में होना शुरू हो जाए, और उनके लिए फिर अपने लिए भी हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने शरारत कर दी है तो आई वॉज अ बैड और नॉटी किड, बट दैट डजंट मीन अ बैड पर्सन, या मैं ऐसा नहीं है कि बस मैं पूरी जिंदगी के लिए ख़राब हो गया. अब जब ये नहीं होती, अब मैं आपको बताती हूँ ये कब नहीं होती. सो इवेंचुअली अडल्टहुड में देयर इज अ हाई चांस यू विल डेवलप this disorder called borderline personality disorder, where you will struggle with keeping relationships because you will put people on a pedestal once they are being nice to you, and the moment they do something which is thoda sa slightly bad, then that pedestal you will become their enemy. You will be like, just get out of my life. And borderline personality, I don't want to make it like a light issue. ऑल्सो ये एक डिसऑर्डर है, आप किसी को डायग्नोस नहीं कर सकते, बट ये वो स्पेक्ट्रम होता है. सो somebody can be like a full borderline personality disorder and somebody can have these traits. Even having these traits will, और ये आपको आप अपने आसपास नोट करेंगे, you will see so many of millennials struggling with this. आपको कोई ना कोई एक आपकी ऐसी दोस्त ज़रूर होगी जिसकी ज़िंदगी में कोई एक बॉयफ्रेंड आता होगा,
तो वो ऑब्सेशन होगी और दुनिया जहान वही बस बॉयफ्रेंड होगा, वो दुनिया का सबसे अच्छा होगा. एंड वन डे शी विल टॉक टू एंड शी विल लाइक के वो तो मर गया मेरे लिए, राइट. सो दिस अब्रप्ट चेंज और वो जो स्प्लिटिंग है, और इस तरह के लोग दे स्ट्रगल विद सिवियर डिप्रेशन. दे कांट मेक सेंस. उनको जो अच्छे लोग भी होते हैं वो बुरे लग रहे होते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर क्लूज कि ये कब बुरा बिहेव करें. दे स्ट्रगल विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एडिक्शंस क्योंकि द इंटरनल इमोशनल टर्मोइल एंड दिस इमोशनल वो जंप है फ्रॉम 0 to 100 इज जस्ट सो एक्सिलरेटेड कि दे नीड समथिंग टू सूट देम डाउन. सो अब ये सारा कुछ होता है. मैं आपको वही बताई थी कि जो स्प्लिटिंग है ना तब होती है जब आपके बच्चे ने कोई शैतानी की है, आपने उसको कहा है कि तुम तो हो ही बुरी औलाद. यू आर लेबलिंग देम. हाँ, तुम तो हो ही बुरी औलाद. बदतमीज. एंड स्पेशली व्हेन वंस यू से टू देम कि तुम तो हो ही अपने बाप की औलाद. ठीक है ना. सो instead of just telling them that you cannot do this, this is against discipline or whatever rules we have set for you, that does not make you a bad person. So borderline was something really close to my heart because I have seen people around, I have seen people struggle with it, not properly diagnosed or something like that, but like people having these traits and then going on to completely just destroying their lives. And this is something that basically needs active management. मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में मोस्टली लोगों को इसका कोई आइडिया भी है. सो अब डिप्रेशन इज अ सिम्टम ऑफ बॉर्डरलाइन. डिप्रेशन इज ऑल्सो a symptom of bipolar disorder, which is a completely different ball game, right? Bipolar is mostly chemical. Borderline is chemical as well, but borderline develops from childhood experiences. Bipolar mostly develops from something going bad in the brain or chemical, at least that's the definition, right? And you cannot really manage bipolar without medications. But क्योंकि similar depression होता है, people are like, depression and just get out of it. They don't really understand. So somebody can be having a depression because they can't relate to any relationship in a good way and they just feel so unworthy and unloved. And then somebody can be having a depression because their brain is like literally so low on dopamine. So uske andar, and both of these people cannot just get out of it. And I will also highlight one case. I will not say who this is actually. So somebody very close to me was on antidepressants for 3 years. For 3 years, went to a doctor. They said तुम्हें depression है, take these pills. And he actually had highly functional depression, right? And he kept on gaining weight as well, and they kept on increasing his dose and kept on increasing because the symptoms were not going away. They would go away for some time but then come back like बिल्कुल एक तरीके से nothing was helping it. And then what happened was that this person basically ended up just leaving the antidepressant की जो meds होती हैं on his own because उसको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था. And what started happening was once he was off of the meds, like after 6 months he came to a point where he could not like get out of his bed because he was just so down. But like the funny thing was okay, before this entire episode of not being able to get out of the bed and everything, he actually went to this phase of really high energy and really motivated and very driven at work and stuff like that. So he went to a doctor. The doctor then, this was finally थोड़ा कोई अच्छा डॉक्टर था. उन्होंने उसको क्या किया कि जी जब उन्होंने उसका इंटरव्यू करना शुरू किया then they called up his wife कि उससे कुछ चीज़ों की उन्होंने confirmation ली. It turned out कि he had bipolar disorder. And now imagine कि somebody who had bipolar disorder was basically, so bipolar disorder में ये होता है कि when you are on a high then you need some antidepressants. But you cannot have very high dosages of antidepressant because the low is coming. And when the low, also low में अगर आपने already जो है ना क्या कहते हैं, sorry, so lows में आपको antidepressants देते हैं, but वो then the high is coming तो उसको भी आप इतनी ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि फिर then the highs go really high क्योंकि आप antidepressant से भी dopamine ले रहे हैं और आपका दिमाग की chemical. So the misdiagnosis
and the mistreatment from multiple doctors, just telling him कि you know कोई नहीं तुम्हारा मसला है, फिजिकल हेल्थ ठीक कर लो, ये कर लो, वो कर लो. तो so that's why I say, so bipolar, borderline personality disorder, these are just like some of, I see them so common. And then of course then you have your generalized anxiety, which I personally have. I'm pretty sure a lot of people you know have. Yeah. Anxiety about everything. You know, getting out of, and I think what people don't really realize is कि कितना struggle होता है इस चीज़ का. क्या होता है कि so generalized anxiety अब सुनने में बहुत ही अच्छा यार सबको होती है, सबको anxiety होती है. Generalized anxiety means कि आप घर से बाहर निकले हैं, आपने 4 दफ़ा दरवाज़ा चेक किया because you're anxious something is going to happen. Yeah, this happens to me all the time. कि अगर if I have straightened my hair, if I have stepped out of the house, so I'll keep on constantly thinking कि आपने मैंने ऑफ किया था, नहीं किया था, इस्त्री चला के ऑफ की थी, नहीं की थी. Exactly. So this is basically. और अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं इस तरह के ख्याल तो सबको आते हैं. कुछ लोगों को इस हद तक आते हैं, मुझे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, मुझे इतने अफसासी सब आते हैं, मेरे को दिन खराब हो जाता है. आई हैव टू एक्चुअली कॉल अप पीपल घर पे, चेक करो और इस तरह की चीजें. अच्छा हाँ चलें कंटिन्यू करें फिर. हाँ मैं बस ये भी साथ में कह रही थी कि वो नौकरी है, बॉस ने एक फुल स्टॉप इधर से उधर लगा दिया, पूरा दिन बैठ के सोच रहे हैं क्या हो गया यार, बॉस ने कह दिया कि क्या हुआ है, कुछ डांट दिया, हाँ ये फीडबैक दे दिया. इट गोस टू द पॉइंट फायरिंग नेक्स्ट दिन वर्स्ट सोचना. हाँ I mean again अच्छा एक चीज because now we are like heading to that topic, we also need to discuss how these really serious terms are being used very loosely as well. OCD I think इस पे तो बहुत लोग बात कर रहे हैं कि जी अगर if you like a tidy room it does not mean कि आपको OCD है. OCD के वाले जो लोग जिनको असल में OCD होती है they actually are so obsessive. वही वाली बात है कि सोच के it affects your life basically, it affects your relationships. हाँ आपका पूरी रूटीन, आपके नॉर्मल ऑपरेशंस दिन के जो हैं वो इफेक्ट कर रहा है. तो यू नो इट इज समथिंग. और उसको बहुत लूजली यूज टर्म हम लोग करते हैं कि ओह जी उसको तो ओसीडी है, या अगर 2 बुक्स ऊपर नीचे पड़ी होंगी तो हम उसको ठीक करेंगे, ओह जी मुझे तो बहुत ओसीडी है. लाइक प्लीज कम ऑन. और ये है कि अच्छा दूसरा ये है कि एक ओसीडी को हम बहुत करते हैं, डिप्रेशन को बहुत करते हैं, डिप्रेशन को भी बहुत करते हैं. डिप्रेशन भी हाँ ये तो डिप्रेस हो गया, सैडनेस, ग्रीफ जो कुछ भी है ना बस सब बस वो डिप्रेशन है. और एंजाइटी को भी ऐसे ही करते हैं कि यू नो दिस रश ऑफ एड्रेनलिन, और आपको वो यू नो एंग्शियस अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इट डज नॉट मीन कि आपको एंजाइटी है. आई थिंक इट आपको थोड़ा सा इस चीज़ को, बिकॉज आई थिंक ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है. अगर कोई चीज़ अनसर्टन होगी आपकी बॉडी के अंदर, जाहिर है वो एक एंग्शियसनेस आएगी. इट डज नॉट मीन कि आपको एंजाइटी है. तो ये वाली चीज़ है. अच्छा मैं आपको बताने लगी थी स्टोरीज में, मैंने कहा साथ साथ शेयर करें. मेरा फर्स्ट एक्सपोजर टू एनी टर्म ऑफ मेंटल हेल्थ was back when I was in 8th grade. My best friend फाइनल एग्जाम्स थे और आई गॉट टू नो कि वो एग्ज़ाम्स नहीं दे रही है. उस एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले भी उसने छुट्टियां की और 3 महीने तक भी उसने छुट्टियां करनी थी. एंड दिस इज़ माई बेस्टेस्ट फ्रेंड. और आई एम सो डम, आई डिड नॉट चेक अप ऑन हर, आई एम सॉरी. और जब वो वापस आई तो उसने मुझे कहा कि आई एम डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन. 14 ईयर्स के होते हो आप जब 8वीं जमात में होते हैं, 14 ईयर्स. मुझे समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है. और उसने मुझे सारा प्रोसेस बताया कि इस तरह मैं गई और मैं मेडिकेशंस पे थी और मेरी इस तरह की एपिसोड्स होती थी एंड दिस एंड दैट, एंड शी इज़ वेरी ओपन अबाउट व्हाटएवर हैपेंड टू हर. और मुझे कोई बहुत मतलब मैंने शायद उस चीज़ को उस तरह से परसीव नहीं किया कि इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज जनरली मेंटल हेल्थ के ऊपर उस जमाने में तो बिल्कुल ही बात नहीं होती थी. ठीक है. तो मतलब उस टाइम पे भी दिस वाज अ थिंग, और वो डायग्नोज होके उसके ऊपर सारी उसकी हुई. एंड देन फाइनली अभी आई एम नॉट श्योर कि अभी भी उसका वो चल रहा है, बट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम उसका इलाज वगैरह भी चलता रहा, मेडिकेशंस वगैरह भी चलती रही, थेरेपी, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ चलती रही. तो आई एम जस्ट सो ग्लैड कि उसके पेरेंट्स ने उसकी बात को सीरियस लिया. वो मतलब बता सकी
उसका इतना ओपननेस थी उसके पेरेंट्स के साथ और वो सब कुछ बता सकी। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी ये चीज़ें अननोटिस चली जाती हैं। आपको सेल्फ आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ मसला है, बट एट द सेम टाइम आपके इर्द गिर्द वाले भी नहीं प्रोबेबली करते हैं, और समटाइम्स की कम्युनिकेशन का भी बहुत गैप होता है कि आप नहीं कर पाते। अच्छा, एक चीज़ इसमें और मैं ये ऐड करूँगी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एज वेल। अब तो 2025 में पिछले 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ कि थेरेपी और काउंसलिंग, जो जनरल काउंसलिंग और थेरेपी है, उसका तो बहुत ज़्यादा अब ट्रेंड आ गया एंड आई एम ग्लैड। बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों के पास जनरली हमारे सर्कल में कोई एक कॉन्फिडेंट भी नहीं होता, या इवन कि कोई एक दोस्त हो जो जजमेंट फ्री बात कर सके, ठीक है। और even if you are going to a therapist or a counselor just ताकि आप अपना दिल हल्का कर लो, it is going to help you a lot. Yeah, exactly. So वही बात है कि मतलब थेरेपी भी कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि जी एक थेरेपी के सेशन में जाओगे, बुलेट खाओगे, वापस आओगे हंकी डोरी हैप्पी जो है ना पूरी जिंदगी हो जाएगी। थेरेपी इज लॉन्ग वर्क, बट यस मैं तो ये भी बोलूंगी कि थेरेपी कैन बी डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। और एग्जैक्टली, और यही बात मैं कह रही थी कि एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। एंड अगेन द क्रेडिबिलिटी ऑफ थेरेपिस्ट, यस, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इफ आई एम गोइंग टू अ थेरेपिस्ट विद समथिंग एंड दे आर गोइंग टू जस्ट tell me what I already know, I might not go to them again. ठीक है। हाँ, तो उसके ऊपर भी तो अगर आप किसी काउंसलर थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसका देख लें, क्योंकि क्रेडिबिलिटी ट्राई करें कि मेरे अपने एक्सपीरियंस में तो ये है कि somebody जो ऑलरेडी उनके पास किसी ने किसी का रेफरेंस दिया हो तो इट्स बेटर, आपको पता होता है कि हाँ ये क्रेडिबल एक सोर्स है। वरना सॉरी टू से काफ़ी क्रेडिबिलिटी के भी इश्यूज अब आना शुरू हो गए हैं। आई एम नॉट, डू वी हैव लाइक अ बोर्ड जिससे आपको वो सर्टिफाई करना? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में थेरेपिस्ट कह लें या मेंटल हेल्थ जो है इज नॉट रेगुलेटेड एट ऑल। Psychiatry is still a bit regulated. And what's the difference? So psychiatry is where somebody has like an MD or MBBS degree and they mainly treat you by medication. और even though जो US में psychiatry जो लोग करते हैं they are called shrinks, so they do the counseling bit themselves and what they do is कि then they give you medicines with it as well. But like in Pakistan में these two are separate things. Generally you'll go to a psychiatrist, they'll give you some medicines and they might prescribe you therapy or counseling and they might refer you to like a psychologist. मसला मैं आपको बताती हूँ कि जो साइकोलॉजी वाली स्पेस है जिसको थेरेपी कह लें, थेरेपिस्ट कह लें, मोस्टली पीपल या तो बाहर से मास्टर्स किया होगा या PhD की होगी या फिर यही इंटरनल यहाँ के UK की वो सर्टिफिकेशंस करके कुछ पीछे का यहाँ की यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड लेके एंड दे आर रेडी टू बेसिकली एंटर इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ थेरेपी या काउंसलिंग जो है। इसके अंदर आई थिंक वन थिंग दैट आई वुड रियली लाइक टू शेयर, जो कि मुझे एज अ स्टूडेंट जाके पता चली थी बट आई थिंक जनरल कॉमन नॉलेज होनी चाहिए। सो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट इन थेरेपी जिसको आप ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस कहते हैं। सो द आइडिया ये है कि जो थेरेपिस्ट होता है, ख़ासतौर पर जिस मोडेलिटी में मैंने पढ़ा हुआ है या जिसके अंदर मैंने वो किया हुआ है कि थेरेपिस्ट इटसेल्फ जो है ना वो एक मीन्स ऑफ हीलिंग है। वो क्या बोल रहा है या उसकी क्या पढ़ाई है, जो उसकी मोडेलिटी है ना, दैट डजंट रियली मैटर। उसकी प्रेजेंस और वो जो एम्पैथी प्रोवाइड करता है और वो जो एक स्पेस प्रोवाइड करता है, दैट बेसिकली हील्स द पेशेंट, या पेशेंट नहीं कहना चाहिए, द क्लाइंट। अच्छा, और वो हीलिंग कैसे होती है कि जो भी क्लाइंट आ रहा है ना, तो हर क्लाइंट की जिंदगी में ना एक कोर रिलेशनशिप होता है जो कि उनकी जिंदगी के बाकी सारे रिलेशनशिप्स को मिमिक कर रहा होता है। और डिफरेंट लाइफ फेजेस पे डिफरेंट मोस्टली लोगों के पेरेंटल रिलेशनशिप्स होते हैं। अम्मा के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, मोस्टली आप अपने क्लोज रिलेशनशिप पे, जो भी वुंडेड रिलेशनशिप होता है ना आपका बचपन में, अम्मा अब्बा कहीं से भी, आप मोस्टली अपने क्लोजर रिलेशनशिप्स में उन्हीं को मिमिक करते हो। और होता क्या है कि आप फिर जब आते हो थेरेपी में तो वो ट्रांसफरेंस का अमल ये है कि इफ़ यू आर गोइंग इन टू थेरेपी विद अ वुमन, मतलब आप खुद भी एक हैं और आपकी मे भी आपका अपना अम्मा के साथ एक है रिलेशनशिप जो कि वो लव हेट रहता है और आपके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं या जो कि ड्राइव करता है आपके बाकी रिलेशनशिप्स।
So you might start transferring your mom onto the therapist. Or imagine your therapist is this all loving, empathetic, very wise sort of entity. So wo jo transference hai na, that is basically healing you. The other thing is कि there's this other क्या लें एक चीज़ होती है which starts happening कि the therapist also starts having some counter transference. So therapist का अपना भी कोई ना कोई relationship होगा, so हो सकता है कि therapist को खुद आपके लिए बेटी जैसी feeling आना शुरू हो जाए. सही है. So this is a very important. So मसला ये होता है कि in even trained therapists sometimes fail to recognize the counter transference. So फॉर अ थेरेपिस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो आपकी अम्मा बन के आपके साथ बात करने लग जाएगा तो फिर आपका थेरेपिस्ट नहीं है बेसिकली. सो दे रियली हैव टू अंडरस्टैंड दैट काउंटर ट्रांसफरेंस, एड्रेस इट विद देयर सुपरवाइजर, समटाइम्स एड्रेस इट इवन विद द क्लाइंट, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी हो जाए, क्लाइंट को भी पता लग जाए कि अच्छा, ताकि क्लाइंट कैन मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट द थेरेपिस्ट इज सेइंग. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मेरे अपने साथ हो चुका है. I have been to therapy and I have been in, she was not a bad therapist, she was very good, but there came a point I realized about my transference on her, and when I shared it, then after 3 years of therapy she started sharing her counter transference, and that really made me mistrust her whole judgment and whole. And to be honest, what starts, especially if it's opposite gender therapist client relationship, romantic feelings also start. Full dear zindagi. Yes, that's transference and counter transference. मसला ये है कि यहाँ पाकिस्तान में unfortunately most of the therapists don't recognize it, don't address it, they let it happen. उसमें वो client का बेड़ा गर्क हो जाता है. और दूसरी एक और ये बात भी आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एक थेरेपिस्ट पर ट्रस्ट करना स्टार्ट हो गया ना, दैट थेरेपिस्ट इन सच अ पावरफुल पोजीशन, दे कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक योर मेंटल हेल्थ. एंड इफ दे आर नॉट, सो इस वजह से यस, सो नंबर 1 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर इज लाइक अ 90% चांस इफ यू आर फीलिंग अ ट्रांसफरेंस फॉर योर थेरेपिस्ट, काउंटर ट्रांसफरेंस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. ठीक है. सो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस एंड यू आर फीलिंग के योर थेरेपिस्ट इज ऑल्सो पॉइंटिंग यू आउट लाइक योर मॉम एंड टेलिंग यू, और आपको नसीहतें फजीहतें हो रही हैं, तो देन यू नो गेट आउट ऑफ दैट थेरेपी रूम राइट अवे. सो ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी. आई लॉस्ट इवन दो आई वॉज लाइक studying and everything, but even I didn't. I think this is such a deep insight. I have never thought about it that way. Yeah, and वो basically it's literally अगर आपका therapist address नहीं कर रहा, it basically वो पूरा आपका जो therapy की कह लें वो जो एक होती है ना उसकी जो integrity है वो सारी ख़राब हो जाती है. और मैं बाकी शहरों का नहीं कह सकती. लाहौर में I've heard of such bad stories of people going in. So I have known people who had been in bad shapes. उनको खुद मैंने थेरेपी सजेस्ट की थी, and they went to therapist, और अपनी तरफ से बड़े बड़े थेरेपिस्ट उन्होंने पिक किए. There have been cases के, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर का elite circle is very well connected, everybody knows everybody. I have heard a story where somebody who was like a daughter-in-law went into therapy with this senior therapist and ranted about her in-laws. The next day, she finds out the therapist had told everything to the in-laws. What? Because there was a mutual connection with the mother-in-law. Aren't they under some sort of oath or anything? Yes, they are, but लेकिन पाकिस्तान को seriously नहीं लेते ना, कोई regulated नहीं है. This girl ended up getting divorced. What? So this is just one story. I know, and this is something that वो होता है थोड़ा gossip के through मुझे पता लगी थी. I have heard stories, first-hand accounts where therapists have withheld information. So dual relationships is also a thing, right? कि so for example आप किसी के साथ थेरेपी में जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि वो बंदा तो आपके हस्बैंड का कॉलीग है. और आपके थेरेपिस्ट को पता लग गया कि वो आपके हस्बैंड का कॉलीग है, वो आपको बता नहीं रहा. So that's a dual relationship, right? So for example, you go into therapy with a male, even a female person, right?
and you said my name is Rabiba blah blah blah, this is my husband, and you rant about him, and then you tell him अच्छा वहाँ काम करता है, उसके ऑफिस में ये है वो है, सारा कुछ है. This lady recognizes that she also works in the same office and she also knows this person very closely. As a therapist, their duty is to tell you right away that number one, either the therapy cannot continue or let me get to my supervisor. क्योंकि dual relationship भी therapy को खराब कर देता है. फिर वो therapy नहीं रहती, फिर वो rant रहती है और फिर वो ये होती है कि there's no healing basically. There's no healing happening. So the problem is कि अब जैसे लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, so many people are training to be therapists. And unfortunately, none of them, no, I would not say none of them, but लेकिन most of them do not work on themselves to actually pick up this. The community is going to be super upset. I know, but this is not something. But I am saying this, so I am not saying. So मैं वही बता रही हूँ कि that's why I said majority of them, because there are a lot of very good therapists out there who are helping people and healing people, but unfortunately there have been a lot of cases, and especially I would say कि जो रबीबा ने पहले बात की, किसी रेफरेंस के थ्रू जाएं, रेफरेंस के थ्रू जाएं, और रेफरेंस आपको पहले से पता होगा, डुअल रिलेशनशिप का चांस भी कम होगा, राइट? और so there are some amazing people doing some amazing work, but unfortunately a lot of crooks are out there as well. I will not lie. People who have not healed themselves, people who are just bored and just want to like do this because वो regulation नहीं है. मैं कल को मैं भी दुकान खोल के बैठ सकती हूँ, मैं therapist को आ जाओ मेरे पास. Nobody will actually tell me anything and I can start charging people money. So that's why मैं जब कहती हूँ ना कि mental health के मामले में we are so far behind, because जो ये सारे लोग हैं ना, they go through these immense trainings और पता नहीं कितना कितना इनको काम करने को मिलता है और सारा कुछ होता है, but साइकोलॉजी का 4 साल की डिग्री कर लेने से या एक मास्टर्स कर लेने से यू रियली डू नॉट बिकम अ थेरेपिस्ट. आपको अपने ऊपर बहुत काम करना होता है, एंड देयर आर सम वेरी गुड पीपल, और मेरे हिसाब से वो जो हु आर डूइंग अमेजिंग वर्क, लेकिन फिर देन दे बिकम वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, एंड उन पर टाइम और लाइन काफ़ी लंबी होती है. सो यस. अच्छा, फनी स्टोरी तो नहीं है. आई थिंक थेरेपी इज द फर्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर हबीबा एंड आई बॉन्डेड. So we were having lunch usual इसमें, और मैं I had joined this office just recently, और हबीबा को 3-4 महीने हो चुके हुए थे. हबीबा was like sitting with a group of girls, और मैं just by the way जाके बैठ के I was having lunch, और पता नहीं कहाँ से बात स्टार्ट हुई, करते थेरेपी पे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो एक कॉमन वो ग्राउंड, सो ग्रीफ वाज बेसिकली द कॉमन टॉपिक जिस पे हमने बात स्टार्ट की. आई गॉट टू नो दैट हबीबा हैज लॉस्ट अ पेरेंट एंड आई डिड एज वेल. तो हम उसके ऊपर बात कर रहे थे, हर एक्सपीरियंस एंड हाउ हर जर्नी हैज बीन ever since her dad passed away. और likewise I lost my mom in 2022, और हम उसके ऊपर बॉन्ड कर रहे थे. करते I thought this person is really cool, and I overshared, which I tend to do. Both of us do. Not a really good trait as an HR person, but खैर, तो we talked about mental health, how it has affected, and I was actually on a lookout के I thought 2 साल हो चुके हुए थे, my mother has passed, and I thought it's time. कुछ ज़िंदगी के मामलात सही नहीं हो पा रहे थे. It was actually affecting my day-to-day life. I was looking out for a counselor, basically grief counselor मुझे चाहिए था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि where to start. हबीबा ने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, and we started talking about it with contacts वगैरह शेयर करके. So this was probably the first time कि हमें फील हुआ कि हाँ, this is something common, और हम उसमें जो है वो बात करें. So having said that, I have been into therapy as well, and trust me, being a millennial जो कि एक ऐसे household से है जहाँ पे expressing yourself is not a thing. Not encouraged at all. Not encouraged at all. मतलब I actually come from a household जहाँ पे सब थोड़ा सा अपने expressions को control में ही रखते हैं. They're not very expressive.
तो coming from such a background, it was really difficult for me in the start to open up. I actually sometimes could not find words कि मैं अपनी, for example, if I'm feeling sad, I would sometimes lose the word sad. Like I would just forget that this feeling is called sad. वही इमोशनल आपकी रेगुलेशन ही नहीं हुई होती है. You're not allowed to actually feel, let alone name the feeling. Yeah. तो वो फिर आपको थोड़ा सा, but therapy helps a lot. It has been quite a while and I could actually feel the difference, but it's a long way to go. Again, जैसा हबीबा ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप थेरेपिस्ट के पास गए, उसने कोई घोल के आपके दिमाग में डाला और the very next day you are like, oh, I am feeling so good. Yeah. So it's a long journey, but you have to embrace your journey. Yes. It is your journey, you have to embrace it. And that is why it's really important to find a therapist who is Works well for you. well for you, because you are opening up to a person and you are including them into your journey. So it is really important. Exactly. और also so मेरे साथ ये हो चुका है because I was a people pleaser. मैं तो जिस थेरेपिस्ट के पास पहली दफा जाती, हाँ, जब जाती थी पहली दफा, तो मुझे तो उनको नो बोलना भी ना एक अजाब लगता था, राइट? कि अच्छा मैं अब उनको किस तरह नो बोलूँ, क्या बोलूँ, किस तरह से बोलूँ. बट लेकिन I have learned this the hard way कि even therapists understand कि not every client is going to stick, because उनके साथ भी उनको खुद भी अपने मैच का होता है, राइट? हर कोई हर चीज़ नहीं ट्रीट कर सकता, और इस वजह से ट्राई आउट अ कपल ऑफ पीपल. बट लेकिन किसी को ट्राई करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू एटलीस्ट 4 सेशंस. सो इट्स गुड कि यू डू एटलीस्ट, मतलब अक्सर होता है पहले सेशन में आप जाते हैं, आप कहते हैं यार ये क्या बकवास है, बिकॉज वो एक्चुअल में हो सकता है कि वो आपकी अपनी हेजिटेंस और फ्रिक्शन है, इज नॉट to do something with the therapist. So it's always good to give them 3 to 4 sessions and then you move on to the next if you are not really feeling. Yeah, I totally agree. I mean, because this is what I've been through myself as well. Before I found the one. Yeah, found the one. Found the one. Yeah. I went to a couple of more. Or I think first session is always tiring because you have to repeat your story. Yeah, and you have to, like, it's awkward and you're just ranting. आपको शुरू से सुनानी है, आपको 4 लोगों को शुरू से स्टोरी सुनानी है, तो वो it gets very exhausting. Yes. तो उसकी वजह से भी होता है, and then especially for people like me who have trouble expressing themselves, आवाज़ारी लगती है. Yeah. शुरू के कुछ sessions you are just so tired. You are like, वो tiredness है ना, you do not want to feel all of that again and again, क्योंकि जितना आप बात करते हैं वो दोबारा आपको feeling भी साथ ऊपर लानी पड़ती है. Yeah, and I think generally it is tiring because आप अपने अंदर घुस के वो चीज़ें बोल रहे हैं जो शायद आप नॉर्मल जिंदगी में नहीं बोल रहे, वो शायद अपने आप को भी नहीं बता रहे होते, आपको आप कह रहे होते हो सब. I think that is why therapy and even journaling is very tiring as well. Yeah. Because वो जो अंदर से निकलता जा रहा है, आप उसको फील करके आप निकाल रहे हैं. So yeah, it is. I would also, यही मैं थेरेपी के ऊपर हम काफ़ी बात कर रहे हैं. I would also like to say कि not everyone can afford therapy. Therapists खास तौर पे अच्छे वाले बहुत महंगे भी हो गए हैं because their time is limited. So जैसा रबीबा ने भी mention किया, therapy can be anything for you. For you it can just be journaling. आपको physical exercise में मज़ा आता है, आपने भागना है, that helps you. Music, if music helps you, listen to music. Yoga, meditation, whatever floats your boat, right? But एक चीज़ मैं बता दूँ कि research has shown, आप जितना मर्जी वो कहते हैं कि वो सो लॉन्जेविटी पे बहुत रिसर्च हो रही है, राइट? कि किस तरह से आप अपनी लाइफ का स्पैन बढ़ा सकते हैं. गुड फूड, गुड हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ऑफ कोर्स अगर बेहतर होगी, हार्मोन्स बेहतर होंगे, केमिकल्स बेहतर होंगे, ऑफ कोर्स वो फीलिंग्स, आप स्लीप साइकिल अच्छा होगा. ऑल ऑफ दिस मैटर्स, बट व्हाट रियली डज मैटर इज हैविंग क्लोज रिलेशनशिप्स, हैविंग क्लोज लविंग रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस आपके हों. और एंड मेरे तो हिसाब से एक से ज़्यादा होना चाहिए. एक भी होना तो उस बेचारे पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है. तो बट लेकिन जो थेरेपी भी है ना, वो वही चीज़ मिमिक कर रही होती है. जैसा मैंने पहले बताया कि वो एक्चुअल में वो रिलेशनशिप होता है जो कि हीलिंग होता है, नॉट द थ्योरी दैट द
therapist brings या जो psychology की उसकी knowledge होती है, it's not that, it's actually that loving empathy और open सा जो कह लें safe relationship होता है, that helps. और वो relationship आपको किसी में भी मिल सकता है. So try and find like cheaper ways of therapy as well. It's not necessary कि mental health अगर आपकी ख़राब है या कोई आपको मसला चल रहा है. अच्छा, वैसे pro bono cases भी कुछ लोग लेते हैं. Yes, but those are very थोड़ा सा few apart होता है यार. थोड़ी सी struggle ज़्यादा है, but कुछ लोग pro bono cases भी ले रहे होते हैं, which Yes. means free therapy. तो आप कर सकते हैं. I personally know a lot of counselors जो कि करते हैं pro bono भी करते हैं, and then at least some of their hours they dedicated to pro bono cases जहाँ पे actually में somebody really needs it. And then another thing that I would like to highlight is that yes, some people cannot even afford to be mentally ill. Yeah, so a lot of people are going through stuff like functional depression, That and is I so think it is sad. so important to recognize that, and I really empathize with people like that जो दिन में उठते हैं, they do not feel like getting out of the bed, they do not feel like talking to anybody, even some of them are going through suicidal thoughts, but लेकिन responsibilities and thinking about other people और सब चीज़ों के अंदर they are just functional, काम पे जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, but actual में internally they are unhappy, they are sad, they feel lonely, they feel disconnected. I would also like to say that a lot of depression does come from not having any actual connection. So you might see people who are very party people type हैं, they have so many like बड़ा सा friend group है, सारा कुछ है, but if you do not have connection, right, जहाँ पे you can really be your authentic self, right? So अगर आपने एक जगह जाके कुछ और pretend करना है, वही होता ना कि memes भी इस पे बहुत बन चुकी हैं कि my different personalities for my different friend groups. वो अगर so I think it's very important to recognize कि out of responsibility, out of whatever, there are people जो कि वो ज़रूरी नहीं है कि typical depression का हो, तो इस वजह से keep an open mind if somebody does decide to open up in front of you और आपको कोई कहना चाहे कि मेरी हालत पतली है, ज़रा बात सुन लो या whatever, तो do not dismiss them कि अच्छा ये तो सब तुम्हारे control में है, work on it, क्योंकि या और कोई ओपन अप कर रहा है तो माय एडवाइस इज के डू नॉट थ्रो योर प्रॉब्लम्स एट देम and also do not advise, मतलब please try to just listen. होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी यार मेरी ना ABC प्रॉब्लम है, तो लाइक बस ABC है, मेरी तो XYZ भी प्रॉब्लम है, मतलब डू नॉट डू दिस प्लीज. I just absolutely hate it. कि कोई कहेगी जी मेरी जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, बस मेरी जॉब में ये स्ट्रेस, भाई कोई कंपटीशन नहीं चल रहा, मैं तो पत्थर उठा के आता हूँ. हाँ भाई कोई कंपटीशन नहीं चल रहा, और अगर आपको मेंटल चाहिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ का तो आप ले लें, या तो फिर आई डोंट नो, पता नहीं, बी लिटिल एम्पैथी गोज अ लॉन्ग वे, थोड़ी सी एम्पैथी शो करें अगले बंदे के साथ. Also मैं एक और चीज़ another कह लें similar lines पे जो टॉपिक है that I want to bring in कि it's not like कि mental health पहले ख़राब नहीं होती थी लोगों की और पुरानी generations में नहीं होती थी. However पाकिस्तान में या एटलीस्ट साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में आई वुड से पीपल वर भले टॉक्सिक ही सही रिलेशनशिप्स में मोर कनेक्टेड. There was a sense of community. So because मैं अब आपको ये बताती हूँ. So मैं इसमें एक simple सी example है, right? कि if I look at my mother is very attached to like her khalas and my khala, and even though उनकी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं आपस में और मतलब इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं, but she has this peer group जहाँ पे she can pick up the phone and she can like talk for 2 hours. And they will also talk for 2 hours. They will talk over each other, and then they also share this वो एक faith का वो होता है ना, right, कि अल्लाह पे छोड़ दो यार, जो करना है कर लो. So मुझे लगता है कि वो था, और भले awareness नहीं थी और yes बहुत rigid माहौल था, I'm not comparing, but मुझे लगता है कि एक at least ये मुझे pro नज़र आता है थोड़े से पुराने वक्त का या at least पिछली generation का. And फॉर बेटर और फॉर वर्स ज़बरदस्ती से भी जो रिश्तेदारियाँ लोगों ने जोड़ी भी होती थी ना, वो फिर भी सम सॉर्ट ऑफ कम्यूनल हेल्प कहीं ना कहीं हो जाती थी. अनफॉर्चुनेटली जो वो एक सिर्फ प्रो था ना हमारी सोसाइटी का कि टाइम ऑफ नीड में कम्यूनल हेल्प वुड बी गुड,
कि वो अब वो भी ख़त्म हो रहा है. सो फॉर न्यू जनरेशन, रबीबा आपकी कितनी आप अपनी बहन को कितनी दफ़ा कॉल करती हैं? यार वी लाइक बहुत दफ़ा वी टॉक अ लॉट. सो आई हैव 2 सिस्टर्स, और दोनों के साथ ही काफ़ी ज़्यादा रेंटिंग सेशंस होते रहते हैं. अच्छा, बट ऑन योर प्रीवियस पॉइंट मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी. श्योर. ठीक है, उसमें ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि समटाइम्स रिलेशनशिप्स ही वो होते हैं जो आपको ओवरबर्डन कर रहे होते हैं. हाँ. सो मुझे लगता है यस यू आर राइट. मैं इस वजह से ना मैं थोड़ा कॉशियसली इसको कह रही थी. माय पॉइंट इज आई एम नॉट, मैं वही बता रही हूँ कि वो टॉक्सिसिटी भी वहीं से आती है, बट कुछ केसेस में इट हैड लाइक सम प्रो एज वेल. अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अभी क्या है, अभी डिस्कनेक्ट तो है ही है, और टॉक्सिसिटी अगर रिश्तेदारों से नहीं है तो आपके वर्क प्लेस पे या आपके फेक फ्रेंड्स के थ्रू आ रही है, तो टॉक्सिसिटी इज स्टिल देयर. और डिस्कनेक्ट ज़्यादा है. यू डू नॉट हैव पीपल अराउंड जिनके साथ आप रेंट कर सकें. और उसके बाद उसके अलावा डिस्कनेक्ट इस वजह से भी ज़्यादा है कि वो सोशल मीडिया में घुसा दिया. मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ कि मैं खुद भी ना, मतलब मैं वो जिसको लोग मी टाइम कहते हैं, या मैं भी मी टाइम उसी को कहती हूँ कि आई एम जस्ट लाइक स्क्रोलिंग एंड माइंडलेस स्क्रोलिंग. इवन अगर मैं कुछ सुन भी रही हूँ, लाइक वो दैट्स नॉट कनेक्शन, वो नॉलेज गेनिंग या लर्निंग के लिए मे भी हो सकता है, बट तो मुझे वो ज़्यादा इंजॉयबल लगता है अदर देन टॉकिंग टू पीपल, या मैं किसी के साथ वो, बिकॉज क्या है, एफर्ट नहीं है ना उसमें एफर्ट लाइक जीरो है. यू आर जस्ट लाइक ऑन योर बेड रॉटिंग का भी एक कॉन्सेप्ट. सोशल एनर्जीज हमारी बहुत जल्दी ड्रेन होना. Yes, तो and I feel like, so for me at least, मैं अपना पर्सनल जरूर बताऊंगी कि वो that scrolling, because I'm not really big on posting personal stuff और sharing my personal life, बहुत कम मैं share करती हूँ, but at least on social media मैं scroll ही करती थी ज़्यादा. and I thought कि अच्छा, क्योंकि मैं ये करती हूँ तो that's why I am sort of free from this, जो social media की वजह से कहते हैं कि mental health पे affect होता है. no, मसला ये है कि scrolling actually एटलीस्ट वो यही है कि यू गो थ्रू. सो मैं बता देती हूँ कि बेसिकली जिस तरह है कि आई रियली वांटेड टू हैव किड्स, और जाहिर है अभी नहीं हो रहे, या इस तरह की चीज़ें थी. तो बीच में आपने देखा होगा एक पूरा सीन आया था कि एवरी इन्फ्लुएंसर वाज लाइक प्रेग्नेंट, एंड देन दे हैड ब्यूटीफुल ब्राइडल शावर्स, एंड देन दे हैड लाइक glowing full pregnancies with small baby bump with perfect figures. And आजकल में like I really do not want to put anybody down, but then what was happening was कि आजकल भी even आ रही हैं कि there's this influencer, I actually really like her, she's one of the कह लें थोड़ी सी ज़रा realistic है, but उन्होंने भी आजकल start किया हुआ है कि she's like come nest with me, because she's like in her like final months of pregnancy, तो उसमें she's like making baskets for the nurses, and she's like putting decorations, and she's making boxes for like her existing kids, and she's like making good food for herself. Wow. For me, मतलब I'm like, ये कौन सी दुनिया है, और ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? And that oh god, ये मतलब क्योंकि मैं वही बता रही हूँ कि मेरे लिए तो this topic has always been somewhat of a painful topic, क्योंकि चीज़ें कुछ इस तरह की हुई. I don't want to go into a lot of detail, but for me it has not been कि come nest with me, right? Even if I had gotten pregnant, it had not been, and I did not realize it while I was watching it या जो सारा कुछ है, but once it happened once, and then that I actually mentally told myself, like मुझे awareness में आया कि I was just like scrolling, and I had been through an incident very recently हुआ था तब, and there this beautiful like baby shower comes along, and people are like kid, and everything is so happy and everything, and I just started crying. Like I did not expect that out of myself, but so ये तो मेरी एक एग्जाम्पल है, राइट, कि मुझे मतलब वो समथिंग विच इज़ लाइक काइंड का, फिर भी आप कह सकते हैं कि मतलब ट्राइंग टू हैव किड्स या इस किस्म की चीज़ें,
बट लेकिन सिमिलर थिंग हैपेंस, All the कपड़े time. देखो, जूते देखो, मेरे लिए तो शक्ल देखो. लिंक्डइन ही इंस्टाग्राम है, एवरी अदर पर्सन ऑन माय लिंक्डइन इज लाइक गेटिंग प्रमोटेड, oh I got this, मैं कंपनी के ट्रिप पे गई, मेरी ये प्रमोशन हो गई, मेरा यहाँ पे जॉब हो गई. आई मीन इन एचआर कम्युनिटी इट इज रियली रियली रेयर कि आपको रिलोकेशन वाली जॉब मिल जाए. ठीक है भाई, अगर आपके फील्ड में किसी एक बंदे की भी ऐसी आ गई ना तो आप सड़ जाते हो. So yes, my point was कि number one, the scrolling bit is basically really actually damaging आपकी जो attention spans वाली issue है. And then Instagram खास तौर पे उससे it paints such a beautiful picture of everything, you just feel like your life is shit. That inculcate, especially if you are a कह लें मेरी तरह से, मैं तो आई बी वेरी ओपन इनसिक्योर सा पर्सन, somebody who is not really very sure about themselves or very confident. तो मसला यही होता है कि फिर then you look at it and then you like, why am I so fat, why am I not getting thin, why do not I look that pretty. और I feel like कि मैं तो फिर भी मतलब because I'm a millennial, I'm 30 years old और मैं वैसे भी सोशल मीडिया की तरफ वैसे भी लेट आई हूँ, even for my generation मैं लेट आई हूँ. Because my parents were strict और फ़ोन भी मेरे पास कोई अच्छा नहीं होता था सारा कुछ. I feel like for younger generations, especially Gen Z, it is causing so much more. I can see it in my younger siblings, I can see it in my younger cousins, I can see it in my younger colleagues, where so much of number one, I think a lot of people talk about this Gen Z की polarity in this aspect के at some points they are just so sensitive about everything and then they end up turning completely insensitive. One of the examples being this the war that happened a bit recently, and the memes and the Gen Z memes and like things were just going crazy, and that shows that they are just so hardened right now कि उनको वो like war is an actual looming threat. That does not really that means you are actually in physical danger, right? But वो बल्कि हमारी तो खैर पूरी कौम, आई वुड नॉट से जेन ज़ी, हम तो वैसे ही ट्रॉमाटाइज्ड इतने हैं, हमारा कोपिंग मैकेनिज्म ठीक है चल रहे हैं यहाँ पे. और ऑन द अदर हैंड because they have grown up this social media की और they have seen movements, right, Me Too और इस तरह की, कि now they, and without any formal education about these movements, I would also say in for 30-40% of them, I'm not saying all of them, what ends up happening is कि they start either overdiagnosing themselves or they एक तो overdiagnosing भी हो रही है, misdiagnosing, and then also their mental health are actually getting affected. It's actually because their brains have only seen social media for the longest time. So that's something that also really bothers me कि पाकिस्तान में भी और even West में भी ADHD जैसे is now a thing. So उसके ऊपर I would also like to say कि मैं मतलब I do not want to sound insensitive or anything. Believe me, I want to believe everyone who comes up and says that I have ADHD, right? The problem is that I know around, I would say 15 to 20 people who are like younger than me, and I think all 20 of them say that they have ADHD. Yeah, हाँ, अच्छा मैं exactly I was also going to come back to this point कि जिस तरह हमने OCD की बात की, मुझे लगता है इससे कोई ट्रेंड भी है. जैसे 3-4 साल पहले OCD was the word कि जी मुझे हर दूसरा बंदा मुझे OCD है, ये मत करो मुझे OCD है, ये मैं साफ सुथरी रहती हूँ क्योंकि मुझे OCD है, ठीक है. अब वो ADHD को भी बहुत इस तरह से कर रहे हैं, बट I think it is really important to understand what exactly ADHD is, or many a times it's not ADHD, many a times you just need to organize. I would also not say कि just so मेरा इसमें सिर्फ ये है कि number one ADHD, number one for those people who actually have this, their lives are affected to the point कि it's very difficult to live that life without treatment. और उसकी वजह से I know a friend who is like formally diagnosed and he has struggled with like health issues for the longest time and then habit forming issues और वो सब कुछ है. And I understand that, but then just because you are not able to do some office work
you cannot say कि you have ADHD. And the reason I say this is because किसी को असल में होता है, people don't even take them seriously. Yes. So I do actually have something in my notes. मैंने थोड़ा सा निकाला था कि what is basically ADHD. Yeah. So attention deficit hyperactivity disorder है. Inattention, hyperactivity, impulsivity जो है वो इसके की हैं. But I really want to focus on what ADHD is not. It's not laziness. Yeah. ठीक है, सिंपली अगर कोई बंदा अपने आप को लेबल कर रहा है कि जी मुझे ADHD है because I cannot make my bed, it could be you're just a lazy ass. तो प्लीज़ अपने पर रहम खाएं, और कभी कभी सिर्फ डिसिप्लिन की कमी होती है आपकी ज़िंदगी में, और आपको ADHD नहीं है, मतलब मैं ये कहती हूँ खुदारा लाइक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ये, खुदारा अपने आप को इस तरह के लेबल्स ना दें. If you feel के है तो get it checked. Then my question for these people is कि if you are ADHD, right? Number one, go to a psychiatrist or a psychologist. ठीक है, आजकल तो थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं तो करें, वो बेटर हेल्प, वो यूएस के साइकेट्रिस्ट भी आपको और साइकोलॉजिस्ट, बेटर हेल्प इज अ प्लेटफॉर्म, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट लेकिन वहाँ से आपको थोड़े पैसे ज़्यादा भरने पड़ेंगे. गेट फॉर्मल डायग्नोसिस एंड देन गेट मेडिकेशन. ADHD की एक प्रॉपर मेडिकेशन है which really helps. Why are you not on medication then? Yeah, and then it says that it is not a behavior problem. It's not about being naughty or rude. These are often coping responses to frustration or being misunderstood. Yeah. It's not always obvious, of course. It's not a result of bad parenting. Yeah. ADHD is brain-based. Parenting can support or strain someone with ADHD, but it does not cause it. Yeah. And it's not just a childhood disorder. Adults can and they do sometimes have ADHD, but many are underdiagnosed, or many are misdiagnosed with anxiety or depression as well. Yeah. अच्छा, इसके ऊपर I would really recommend to our viewers, especially, मतलब I do not really want to offend anybody here क्योंकि मुझे पता है, so I would really highly recommend this book called Scattered Minds by Dr. Gabor Mate. He himself is a psychiatrist plus a psychotherapist या psychologist कह लें. He himself is ADHD and then 2 or 3 of his kids are ADHD. And he has written this book. It's basically वो कह लें वो होती है ना breakthrough किताब है. It will go into biological roots of ADHD. It will also go into exactly what ADHD is not, why it is misdiagnosed, why it is still curable and treatable, or so that will basically, because I also see the reason I actually जिसकी वजह से मैंने कहा है कि लोग misdiagnose या अपने आप को self label लगाते हैं, I have seen people have made it into an excuse. हर चीज़ से escape करने के लिए, हर बुरे behavior से escape करने के लिए, oh my god, because I have ADHD, right? So it's important to actually get proper diagnosis. So that's why that's something I will emphasize on. और दूसरी एक और बात भी है कि हाँ, ADHD जो है, it can be, even though उसके कुछ classic symptoms हैं, it can look very different for different people. ADHD in women, वो कह लो वो बहुत different तरीके से निकलता है बाहर. ADHD in men generally बहुत different तरीके से निकलता है. And I have, so और मैं ये भी नहीं कह रही कि सारे जो Gen Zs हैं और अगर वो कह रहे हैं कि जी हमें ADHD है तो सारे झूठ बोल रहे हैं. I have known cases, actual genuine cases, people who are just so done with their lives and the way their brain functions के suicidal है. Like they're to a point कि जहाँ पे they need to go to a doctor, they need to get on medication because they're just so depressed because of how scattered their mind is. और इसके ऊपर मैं एक और बात भी बोलूँगी कि actual में I think this is something that you can find in Scattered Minds as well. Everyone when they are born are ADHD. So basically, okay. So my point is कि when you are a newborn or a child, attention जो है आपकी बहुत different होती है और वो सब कुछ जो है, so your brain actually evolves into getting into the habit of focus. Yes.
So 2 to 3 things, जैसे मैंने splitting का भी बताया, इस तरह से मैंने बोला कि children are selfish up until the age of 7 years, very selfish, empathy is difficult to develop. So narcissism is also something which is inherent, and it is a self-protective measure. The idea is कि with proper development, biological brain development, जिसको कह लें वो बेबी और फिर आगे उसको ग्रोथ डेवलपमेंट भी जिसको कहते हैं, एंड प्रॉपर पेरेंटिंग स्ट्रक्चर्स, ये इन चीज़ों से आपने इवॉल्व कराना होता है अपने बच्चे का या उनका ब्रेन. सो देयर इज अ चांस कि जेन ज़ी की जनरेशन में हो, बिकॉज दीज पीपल हैव बोर्न इनटू एन एरा ऑफ digital technology, and where even their own parents were not very stable figures. Or and I think a lot of dopamine comes from the screen time as well. Exactly. That's why they just needed screen. Like even with today's kids as well. Like I have a kid and I have identified patterns where he would go crazy if he's not handled a screen. तो वो ये चीज़ें आपको अब आगे नज़र आ रही हैं, और इसीलिए आई थिंक सारा फोकस ही पेरेंटिंग में यही है कि बेशक जो मर्जी करो लेकिन स्क्रीन टाइम मत दो. एग्जैक्टली. इट्स वेरी हार्ड टू अचीव. इसके लिए यू कैन वॉच आवर फर्स्ट एपिसोड एज वेल. Exactly. So my point is कि it's not like a Gen Z में there is actually a chance of, so ADHD does have a genetic or biological component, but it can be generational as well. So people who themselves have ADHD patterns tend to raise people with ADHD. And वही मैं बता रही हूँ, बच्चों का attention का span already बहुत कम होता है. You actually have to evolve it. So you actually have to so we are not saying कि ADHD जो है वो exist नहीं करता, but we will say कि हर किसी को नहीं होता और हर symptom का मतलब ये नहीं होता. I think overall generally जो भी हमने main वैसे तो I am pretty sure बहुत सारी और ज़्यादा topics we could have covered, लेकिन जो majorly loosely diagnosed जो टर्म्स हैं वो हर एक को नहीं भी होता, बट अगर आपको लग रहा है कि होता है तो then get properly diagnosed and then get medication. like rather than कि आप हर बंदे को उसका एक्सक्यूज बना के कहें, आप जो है उसको चेक करवाएं. और अगर है तो उसको मतलब जिस तरह से एक फिजिकल बीमारी का इलाज होता है उस तरह से मेंटल बीमारी का भी इलाज होता है, तो गेट स्टार्टेड. बिल्कुल. एंड ऑल्सो one thing however I would say कि never, please do not dismiss somebody when they come to you and are really saying कि I'm struggling for whatever reason. Try and do like whatever sort of counseling you can do, whether you can provide some safe space. So many people are going through so many things, whether it is grief, कोई parent की या किसी की death हुई है, depression वैसे ही है, functional depression है because जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है, anxiety है, मतलब हर किसी की अपनी struggle है, and you cannot really judge people. कि आप जो है ना सिर्फ ये जज करें कि नहीं ये तो आपके कंट्रोल में है, इसको ठीक कर लो, इसको खुद ही ठीक कर लो, ये वो जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स वेरी बैड. और यस, अपनी भी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें व्हाइल लिसनिंग टू अदर पीपल. सो यू हैव एवरी राइट टू एक्चुअली not engage with people who are going through some bad situation. और अगर आप खुद भी उस situation अगर आप में है capacity, if you are feeling up for it, but लेकिन अपनी mental health को भी prioritize करें, because once खुद करेंगे तो you can be there for other people. Yeah, this is what my sister usually tells me जब मैं उसको बहुत सारे मसले बता रही होती हूँ ना, कि मतलब whenever the conversation is going to a point where like कि इसका ये मसला भी है, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर दें, इसका ये तो she's like hold on your oxygen mask first, and then जिस तरह हवाई जहाज में होता है कि अगर इमरजेंसी की सूरत में अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगाना है, फिर अपने बच्चे या किसी और की हेल्प करनी है. तो यस, और अपनी जो थेरेपी है उससे तो मैंने यही सीखा है कि जितना आप अपने ऊपर काम करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती जाएगी, और आपका जो रिलेशनशिप है और आपका सर्कल है वो भी बेहतर होता जाएगा. बिल्कुल. एंड also like empathize if you see mental health issues in your parents or people who are not aware themselves. Be kind in pointing those out. I've also seen कि कभी कभार लोग ये भी करते हैं कि अगर if somebody is acting like a bit crazy, they will just go ahead and say कि अपना इलाज कराओ, देखो तुम्हारी क्या हालत है या whatever, right?
that never really works. I think compassion is the only thing that will work for somebody who's struggling. कोई भी जानबूझ के नहीं करता. Nobody wants to stay depressed or whatever, right? Everybody wants to, or I think this is something I can speak from personal experience. I was depressed for the longest time. I was in therapy for 3-4 years. I have struggled with depression on and off again. Different stages of life के ऊपर. पहले student life में था, it got better with some counseling वगैरह. Then I left therapy. Then when I graduated, it was such a big shift. Friends were leaving. I got really, really depressed again. It was very difficult to even like do my job. And to be honest, for me, when after like 6-7 months of therapy, there was this session when I came out of it. I felt so relieved and light. और उसके बाद when I started seeing some difference, to be honest, I started feeling some emotions, like even जो खुशी वाले भी होते हैं, like जो joy वाले भी होते हैं, and sometimes के कोई joyous moment होता था और मैं उसको feel करती थी and I would just start crying because मुझे लगता, I would realize कि अच्छा लोगों को actual में ऐसा feel होता है हर वक्त. फिर generally मतलब क्योंकि वो डिप्रेशन का मतलब भी यही है कि वो आपका दिमाग जो ना वो डिप्रेस्ड, बेसिकली वो डिप्रेशन इज टू एक्चुअली डिप्रेस समथिंग, राइट? सो वो जो एक चीज़ है ना, सो दैट मेड मी रियलाइज कि इट्स वेरी रियल, क्योंकि आपके अराउंड इतना ज़्यादा चैटर होता है, समटाइम्स यू एक्चुअली गैसलाइट योरसेल्फ एज वेल. आपको होता है कि यस कि नहीं मेरे में ही कोई मसला है या मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है और मे बी आई एम क्रेजी, आई एम अ बर्डन. तो आई थिंक ये इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, बट लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू रीच आउट टू समबडी. Even if you cannot reach out to like a therapist, do reach out to somebody that you trust. कोई भी loving entity हो सकती है. And you know, we will also try to bring some resources to this platform as well, because I think mental health is something that is very close to the Bivas and like my own heart. Yeah. And we would really like कि कोई प्रोफेशनल आके अपनी तरह ज़्यादा expanded knowledge इसके ऊपर. Yes, and we will definitely try to get a professional here as well, and we can have like a session with them as well. I think we have talked enough a lot. So we'll see you in our next episode. Okay. Ending note, एक चीज़ मिस हो गई है. एक चीज़ जो थोड़ा सा सेंसिटिव चीज़ भी है वो ये है कि जो आपका रिलीजन है उसका और मेंटल हेल्थ के अंदर थोड़ी सी डेफिनेशन लेके आए. मैनी टाइम्स ये देखा गया है कि कोई अगर इवन ओपन कम्युनिकेशन करने के लिए भी आप अपने पेरेंट्स से या किसी से भी ये बात करेंगे कि जी आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड दिस, और मुझे इस तरह की थॉट्स आती हैं या ये होता है, सो आपको पहली चीज़ ये कही जाती है कि भाई आप नमाज़ पढ़ लें या कुरान पढ़ लें. While of course उनका भी इम्पैक्ट होता है, आई एम नॉट एंटायरली डिसमिसिंग इट, लेकिन समटाइम्स आप एक ऐसी एडवाइस दे रहे हैं जो कि इतनी शायद फ्रूटफुल नहीं है, एंड दैट अदर पर्सन रियली नीड प्रोफेशनल हेल्प. तो आप उसकी फीलिंग्स को डिसमिस मत करें या ये मत कहें कि जी दीन से दूरी की वजह से जो है वो तुम्हारा हो रहा है. या देसी पेरेंट्स ये भी करते हैं नमाज पढ़ो सब ठीक हो जाए, नमाज पढ़ो या सुबह उठो. देसी पेरेंट्स का तीन होता है कि नमाज पढ़ लो, सबको पढ़नी चाहिए, सही के नहीं पढ़े, नमाज पढ़ लो, सुबह जल्दी उठा करो, फोन कम चलाया करो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो समटाइम्स होता है कि अगले बंदे की बहुत सीरियस पतली हालत हो रही होती है और आप आगे से उसको ऐसे एडवाइस देंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन. तो ये भी थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द ध्यान रखें. और I think that's it for today's episode. Thank you so much. We'll see you. Bye. Thank you so much for tuning in. और please subscribe करें. Yes. You always forget to say that. Yes. Yeah, really short of subscribers. This entire podcast is really close to our heart. It's a passion project for both of us. और प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में भी बताएं और ट्यून इन किया करें. सजेस्ट एनी अदर टॉपिक्स जिसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं. देखें अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, ज़्यादा व्यूअरशिप होगी, तब भी हमारे पास ज़्यादा अच्छे गेस्ट आएंगे. सो वी आर ट्राइंग टू एंगेज एज वेल कि हम और गेस्ट को भी लेके आएं. सो थैंक यू सो मच और बाय.